السلام علیکم. یہ ویڈیو سبسکرائب کا ایک کمپلیٹ ٹیوٹوریل ہے. اس میں آپ یہ جان سکیں گے کہ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے اور ویڈیو سبسکرائب سے آپ اینیمیٹڈ ویڈیوز کیسے بنا سکتے ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن سیکھنے کے بعد آپ کس طرح اپنا فری لانس کیریئر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک ڈیمو ویڈیو کے ذریعے جانتے ہیں کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن ہے کیا. آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد آصف. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ جو کہ آپ لکھیں گے وہ رائٹ کرے گا. ساتھ آپ اس میں ڈرا بھی کروا سکتے ہیں کوئی بھی اسکیچ اور ڈفرینٹ اینیمیشن کے آپشنس اس میں اویلیبل ہیں جو کہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ میرے اس چینل کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اینڈ کہیں اسکپ نہیں کرنا ہے آپ نے, ورنہ یہ ہوگا کہ بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ مس کر سکتے ہیں اور جو کہ آپ کو بعد میں پھر ڈھونڈنے پڑیں گے, سرچ کرنے پڑیں گے. سب کچھ اس میں اویلیبل ہے, اس میں دیکھیے. اور ساتھ میرے چینل کو آپ لائک کریں, سبسکرائب بھی کیجیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز جی تو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آپ آنے والے دنوں میں نئی ویڈیوز جو ہے وہ میری اس کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. لیٹس اسٹارٹ, شروع کرتے ہیں. تو انٹروڈکشن آپ کو میں دیتا ہوں. وائٹ بورڈ اینیمیشن ہے کیا اور یہ یوز کہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بات کریں گے کیا. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اسٹارٹ میں وائٹ بورڈ اینیمیشن بلیک اینڈ وائٹ تھی, اب سے بہت چینجز آ گئے ہیں, کلر اینڈ بہت انٹرسٹنگ اینیمیشن افیکٹس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, وائٹ بورڈ اینیمیشن اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے. اس طرح سے بیسکلی اب تو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے, اس کا اسٹوری ٹیلنگ اور ایڈورٹیزمنٹ دونوں کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو سیکھنے کے بعد اب آپ کا اگلا کام کیا ہے, آپ نے ارن کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک یہ فائبر اور دوسری ہے اپ ورک, اس پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور یہاں پہ اپنے کام کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اگر اب تک آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو اپنے اس پہ اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ہے. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ فائبر اینڈ اپ ورک کے بارے میں. فائبر ٹیکنالوجی یہاں پہ ڈفرینٹ فریلانسرز نے اپنا کام جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کلرفل ویڈیوز بھی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ بھی ہیں, کیونکہ اب بہت سارے آپشنس جو ہے اویلیبل ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور مجھے اور مزید دکھاتا ہوں. اس میں انہوں نے اپنے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اماؤنٹ بھی لکھنا چاہتے ہیں, 755 ڈفرینٹ اماؤنٹس روپیز کے اندر بھی ہے فائبر. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تو بھی دکھاتے ہیں یہاں پر یہ سارے ان کے اماؤنٹ ہے کی جو سامنے والے آفر کر رہے ہیں کہ تم وہی کام کر دیں گے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ اپ ورک ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی دیکھیں, یہاں بھی آپ کو ڈالرس میں نظر آئیں گے. یہاں پر $200 اور 3 دن کے اندر یہ اس کو کام کر کے دے رہے ہیں کمپلیٹ 2 days کے اندر. $150 اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں, $1000. آپ یہ کام آپ کی اسکلس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اسکلس حاصل کر چکے ہیں اپنے کام. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اس طرح سے یہ ساری چیزیں انٹروڈکشن میں آپ کو اس کا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ کہاں اسکل کا یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور نیچے مزید دیکھ لیں آپ. اب ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے. سب سے پہلے انسٹال کرنے میں اس میں کرنا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا. اچھا, اس کا لنک میں نے جو ہے ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دیا ہے. لنک اپلوڈ کرنے کے بعد ایک پیج اوپن ہوگا, یہاں سے فری ٹرائل کا آپشن آ رہا ہے, اس پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کا آپشن آئے گا آپ کے پاس فری ٹرائل کا. یہاں سے نیچے اسٹارٹ فری ٹرائل کا آپشن آ رہا ہے, اس پر آپ کلک کریں. یہ پیج اوپن ہوا ہے. اس کے اوپن ہونے کے بعد آپ اس کے اندر اس طرح سے آپ نے ہاٹ میل, جی میل وغیرہ کا اکاؤنٹ بنایا ہوا, اس طرح سے آپ اپنی ڈیٹیلس جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کر دیں. جیسے یہاں پر آپ نام لکھتے ہیں اپنا, اس میں میں یہاں لکھ دیتا ہوں آصف خان. یہاں پر ای میل ایڈریس جی میل کا جو ہوگا وہ آپ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے, تو ساتھ دوستوں آپ میرے چینل کو جو بہت یوزفل ہوگا آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فیوچر,
इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी यूनिक पासवर्ड है, नाम लिखें अपना XYZ, जो भी नाम लिखें या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसके साथ न्यूमेरिक डाल दें, कोई एक और की डाल दें इसके साथ सिंबॉलिक। ठीक है, इसके बाद एग्री पे क्लिक करें एंड क्रिएट अकाउंट, योर फ्री ट्रायल अकाउंट इज रेडी। ओके, इसको आप रहने दें, करना है तो ऑनलाइन करें। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है, 64 बिट ही है तकरीबन सबके पास पीसी, 32 बिट का आएगा 32 बिट कर लीजिएगा, 64 अगर है आपका पीसी तो हम यहाँ पे 64 बिट है मेरा पीसी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, डाउनलोडिंग हो रही है। सिस्टम पे डिपेंड करता है स्पीड पर, जितनी स्पीड है उतना ही टाइम लेगा, थोड़ा सा तो वेट कीजिएगा। अभी डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से हम वीडियो स्ट्रैप आ रहा है, लेकिन 64 अब इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पीड, उस हिसाब से टाइम लेगा ये अपना। अच्छा, इंस्टॉल, यहाँ से हम इसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो करेंगे। इसकी लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, यहाँ से ब्राउज करके अगर दिल कर रहा है तो उसको सेट करना तो आप वहाँ कर सकते हैं से। हम इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो उसने ऑप्शन दिया हुआ है का, आपके पास नहीं होगा डेफिनेटली तो नहीं आएगा। इंस्टॉल पर ऑप्शन में क्लिक करें, अच्छा ठीक पेज ओपन होगा, हर दफ़े लॉगिन करना होगा। ये ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर ओपन हुआ और आपने यूज़ कर लिया, आप हर दफ़े पेज एक लॉगिन करना पड़ेगा ऑन करने के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने चीज़ें डालने के बाद इसको लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये विंडो इंस्टॉलर आ जाएगी सामने। मेरे पास ये 2 काम हुए हैं ऑलरेडी, प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए थे, तो इसकी डिटेल आ गई है यहाँ पर यानी कि हिस्ट्री के अंदर, तो आपके पास ब्लैंक आएगा। चलिए हम चलते हैं क्रिएट न्यू स्क्राइब पर, एक नए हमने वीडियो बनानी है। अच्छा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ी सी क्या मतलब बतानी सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर। ये जो है इमेज, यहाँ से हम एक नया इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी जिसमें हमने काम करना है वो इमेज भी यहाँ से इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, ये वाइट पूरा एक बोर्ड है, ये इस बोर्ड के ऊपर आपने काम करना है। ये वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है इसी के ऊपर सारा काम होगा। ये जो है टाइम लाइन, इसके ऊपर आपने मुख्तलिफ जो आपकी वीडियोज़ होंगी या यूँ समझने के सीन्स हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे। जब तक वो सेव और सेव इसका ऑप्शन था, इसके बाद ये यहाँ से आप अपने पास कोई भी आप वीडियो बना रहे हो उसके अंदर म्यूज़िक ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्ट म्यूज़िक का भी ऑप्शन है, यानी कि आपने कहीं और अपनी मर्जी का सेव किया हुआ है तो आप कर सकते हैं। दूसरा है कि इम्पोर्ट एंटिटी फ्रॉम URL, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसको प्ले करने के लिए बार जो प्ले का बटन इसको प्रेस करेंगे आप तो वीडियो चल जाएगी। यहाँ पर आप अगर जो भी वीडियो बना रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैंने अपनी वॉइस दी, अब आपने भी इस तरह से एनिमेटेड वीडियो बनाई, आप चाहते हैं कि उसमें आपने वॉइस भी दें, स्टोरी टेल करें या कोई एडवर्टाइजमेंट है उसमें, तो उसमें आप इस वॉइस ओवर का ऑप्शन यूज़ करते कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हो कि अच्छा सा बैकग्राउंड देना, ये भी सिर्फ वाइट आ रहा है, इसका आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। अभी ब्लैक हो रहा है तो सिर्फ वाइट है तो वाइट का ही सिर्फ ऑप्शन आता है। यहाँ हमने डिफरेंट कलर देते हैं, तो हमें जो भी अच्छा लग रहा है एक्सवाइजेड वो हम यहाँ ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे 3 क्लिक कर लिया, ठीक है, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं सीखने के लिए। ये हो गया। यहाँ पर जो हैंड हमें चाहिए काम जो लिख रहा होगा, अगर चाहिए नहीं चाहिए, और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो वो आप इसके अंदर देखें, पेन्स वो मुख्तलिफ नाम है उनके ये, और अगर कोई आपको हैंड यूज़ नहीं करना तो वो मूव कर कर आना आप चाहते हैं, मूव कर कर आए आपका इमेज या फिर जंप कर कर आए, इसमें आगे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई एक डिफ़ॉल्ट हैंड, कोई एक इसका मुख्तलिफ ऑप्शन है, उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट करके वो आप अपने यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये वाला यूज़ करता हूँ तो चल रहा है। अच्छा, अच्छा, और इसके अंदर ये देखते हैं यहाँ पे साइड पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ। ये भी ऑप्शन आ रहा है, ये क्या है, टाइप जो भी आपको चाहिए
भी है, ऑप्शन भी आ रहा है इसके अंदर आपके काम के हिसाब से। ये वाला भी है, अगर यूज़ करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ इसके बारे में। ये पेन की सेवा अगर आप चाहते हैं हाथ में उसमें पेन हो तो ये ऑप्शन है, इसमें हम ये वाला हैंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो टाइम लेता है स्टार्ट करने वीडियो को अपलोड करने के अंदर। ठीक है, ये हो गया, ये भी एक पेन ठीक है ना। ये ऑप्शन है प्ले फ्रॉम स्टार्ट का, जो वीडियो बनाई है उसको प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पर ये ऐड न्यू इमेज, जो भी वीडियोस बनाएंगे उसके लिए आपको डिफरेंट इमेजेस की ज़रूरत होगी, वो आप यहाँ से अपने इमेजेस को पिक कर सकते हैं। इसकी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, यहाँ भी आपको बहुत सारे अच्छे इमेजेस मिल जाएंगे काम के। ठीक है, तो थोड़ा लोडिंग टाइम में है। अच्छा, यहाँ से हम सर्च करते हैं, कोई भी पीछे देखते हैं कोई लिस्ट भी आ रही है, उसमें से आप डिफरेंट कैटेगरीज को रख सकते हैं। यहाँ से आपको दिखाएगा हमें कोई एक आदमी की तस्वीर चाहिए, मैन चाहिए। ठीक है जी, तो ये आ रहा है के बाद कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ हमें रखना है। ठीक है, और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, समटाइम गिर जाता है, इससे ज़्यादा परेशान होंगे। अच्छा, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके साइज को। साथ साथ आप इसको मूव करना चाहें तो ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है इसके जरिए आप यहाँ से भी मूव भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ अब हमें करना क्या है, अब हम इसके अंदर उसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। सेटिंग करते हैं, सिस्टम भी ठीक कर लो। ये लॉक ऑप्शन है, बेसिकली लॉक करना है आपने जो भी एलिमेंट है उसको उसी जगह पे लॉक करना है तो लॉक कर सकते हैं। जो एलिमेंट्स कैमरा पोजीशन चेंज करना हो यहाँ से कर सकते हैं कि वो सेट कहाँ पर हुआ, अभी कहीं सेट हुआ उसकी वजह बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर अभी ऑप्शन ये क्लिक किया हमने, बताता हूँ कहाँ से है। तो डिलीट का ऑप्शन है, ये हाइड एलिमेंट है, उसको अगर हाइड करना चाहे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और कैमरा सेट नहीं हुआ अभी तो ये कहीं मूव कर जाएगा। कैमरा सेट करना बहुत ज़रूरी है एडिटिंग के दौरान, क्रिएशन के दौरान। और वीडियो ऑप्शन अब ये यहाँ से नहीं मिलेगा, अभी यही रहेगा। ठीक है जी, इसको हम यहाँ लॉक कर दे रहे हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि एडिट करेंगे थोड़ा सा तो हम अभी इसमें कुछ नहीं करने वाले। ये सेलेक्ट इमेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको जस्ट प्ले करके देखते हैं क्या। ये देख रहे हैं जैसे कि ये राइट कर रहा है, इसको ड्रॉ कर रहा है, सॉरी स्केच कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ है तो सबसे ऑप्शन आता है बीच में रोटेट करने के लिए, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें हमारे मुख्तलिफ ऑप्शन है, ब्लर करना है आपने अपनी कुछ इमेज को, ग्लो का ऑप्शन है, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना है। बाकी ये पेवल इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। ये मोस्टली यूज़ नहीं होता क्योंकि इतने ज़्यादा कलरफुल इमेजेस नहीं है इसके अंदर, तो उसमें ज़्यादा छाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो इसको आप यहाँ यूज़ करेंगे ज़्यादा जरूरत हो तो आगे कर सकते हो, आपके डिपेंड करता है काम पर। अच्छा, यहाँ पे ड्राइंग ऑप्शन है, इसको आप इमेज को चाहते हैं ये ड्रॉ होकर आए, मूव इन यानी मूव होकर आए, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी पैड इन होकर आए। ठीक है, उभर कर आना चाह रहा है आप चाहते हैं। अच्छा, इसमें इमेज का की का रिजल्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब लाइट करना है, डार्क करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको भी मोस्टली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शन। अगर आप किसी भी वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैनुअली इंटर कर दें आप। अच्छा, जैसे मैंने आपको रोटेशन बताया था, आप हाथ से पकड़ के लेफ्ट राइट इसको घुमा सकते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप इसको रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे, और ये आप जब मज़ीद इसको सीखेंगे करेंगे तो आपको इसका इस्तेमाल और अच्छी तरीके से आ जाएगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है एनिमेट करने का, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट यानी जिस पर भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त, वो
कितनी देर में बन जाए, एनिमेट हो जाए, राइट हो जाए, लिख रहे हैं तो उतनी देर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद उस एनिमेशन की कंप्लीट होने के बाद अगला काम स्टार्ट होने से पहले कि उसके दौरान इन दोनों के दरमियान कितनी देर का पॉज होना चाहिए, तो ये जो अगला ऑप्शन पॉज का है वो इस चीज़ का है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वीडियो के हिसाब से। एंड इसके बाद ये ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये है जो आपने एक पिक्चर बनाई है कंप्लीट, या एक पूरा एक बनाया है, सॉरी इसको कह सकते हैं आपके सीन बनाया, उसके बाद अब नेक्स्ट सीन के दरमियान कितना टाइम होगा, वो टाइम होता है। चलिए साथ साथ अपना इसमें पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक दूसरा, तो हमने ये वाला पेन सेलेक्ट कर लिया, इससे ये राइट होगा, ये ड्रॉ होगा, सॉरी बराबर राइट किया, स्केच ड्रॉ हो गया इसका। यहाँ पर 3 सेकंड में बहुत तेजी से हुआ है, बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इस पर को भी आपने जाना कि आपने इसको भी किस तरह से यूज करना है इस टाइम को, तो ये हो गया इस तरह से ड्रॉ। चाहे अगर इसको चाहते हैं कि मूव कराए तो वो भी आप कर सकते हैं, वो कैसे होगा। अब हमने मूवल को यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ से आ रहा है, अब ये हाथ लेकर आ रहा है, आप चाहते हैं कि क्योंकि ये खुद से मूव कर रहा है, कोई हैंड ना आए, किसी चीज़ के सहारे ना आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर नो हैंड को सेलेक्ट कर लीजिए, नो हैंड का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। अब हम चला के देखते हैं, देखिए खुद से आया है। तो इस तरह से आपको टिप दी, अब आप और मज़ीद अपने लिए अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से इसको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मुख्तलिफ ऑप्शन है, अप डाउन कहीं से भी आ सकता है ये। थोड़ा तेजी में आएगा लेफ्ट साइड से, उसको आपने यूज़ करना है, लिखने में कितना टाइम चाहिए, या वो आपसे मूव करें तो उसमें कितने टाइम में आ जाना चाहिए। तो हम फिलहाल रखेंगे इसमें ऑप्शन राइट करने का, ड्रॉ करने का, इनके स्केच करने का। स्केच हो रहा है ये, अच्छा ऐसा चेंज कर दिया ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इस पर लॉक कर दिया स्क्रीन को, यहीं पर लॉक हो जाएगी, मूव नहीं करेगी आगे। अब अगला ऑप्शन कोई भी वीडियो बनाने के, कोई भी एक इमेज कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर सेट कैमरा का ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करना है, प्ले फ्रॉम स्टार्ट एंड प्ले फ्रॉम करंट एलिमेंट। तो हम एक भी बनाइए, हमने कुछ काम किया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। ये हो गई है, अच्छा ये जो भर के बाहर ये आ गया बाहर जो हो गया, तो इसको ऑप्शन को खत्म करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जूम एट एंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर चेक हटा दें। अब आप चला के देखिए, ये हो गया और ये अपनी जगह पर रुका हुआ, ठीक है जी। अब इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ लिखना, तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का, न्यू टेक्स्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, मिसाल के हम यहाँ लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, यहाँ पे हमारे पे डिफरेंट फॉन्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें हम अपनी मर्जी से अपने काम के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर वगैरह पे ऑप्शन है, विजिबल नहीं हुआ यहाँ पे। हमारे पास जो है ये है जनाब आरिफ ब्लैक एंड अरेबिक, और डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर फॉन्ट को चेंज करने के आ रहे हैं। इसके बाद आप इसमें अपने इस जो लिख रहे हैं उसके कलर्स डिफरेंट कर सकते हैं, जो भी लिखना अच्छा है। फिलहाल हम ग्रीन नहीं करेंगे, हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन है तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो हम इसको कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन है, आप अपने टेक्स्ट को बीच में चाहते हैं, मिड में चाहते हैं, राइट में, लेफ्ट में, जहाँ भी चाहते हैं वहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। इसको हमने डन कर दिया। अब इसके अंदर हमने करनी है थोड़ी सी
एडिटिंग चेंज करना है, मतलब अपने काम के अपने हिसाब से बनाना है, स्पीड कितनी है, कितनी देर में वो लिख लिया अपने पूरे सेंटेंस वाइट बोर्ड एनिमेशन को। इसको हम करते हैं बंद। अच्छा, ये हमारा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, जो भी आप अपने इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से काम कर सकते हैं। तो परेशान कर रहा है मुझे माउस, आप परेशान मत होइएगा। चलिए ड्राइंग ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, हम चाहते हैं इसका जो है टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 5 सेकेंड में लिख लिया उसको कंप्लीट। तो कर दिया हमने, उसको लॉक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से कैमरा सेट कैमरा का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ रखने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस वीडियो चला के देखते हैं कंटेंट एलिमेंट वाइट बोर्ड एनिमेशन। सही, ये एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। पूरी वीडियो चला के देख लेते हैं। इस तरह से एक सीन क्रिएट हो गया। सही, अब हम एक नया सीन क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये इमेज को आपने मूव कैसे करना है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो के अंदर शुरू में देखा था, एक इमेज खड़ा हुआ था राइट साइड पे मूव करके, फिर वो लेफ्ट साइड पे हुआ। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये कप ऑफ टी कप है। इसको मूव हम किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक नया सीन क्रिएट करवाऊंगा। तो जैसे ये एक सीन हो गया, अब आपको एक नया सीन चाहिए, उसके लिए आप इसको उठा के साइड में रखते हैं। जैसे आप वीडियोस में देखते होंगे कि लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं मूव कर रहा होता है, जो भी आप एनिमेशन होती है उसको। तो इस तरह से आप इसको पकड़ के साइड में कर सकते हैं। चलिए साइड में हो गया। अब हम यहाँ पे लाते हैं कब के स्ट्रीम में आ गया इसकी, तो अब ये इजीली आगे हमें ढूंढना नहीं पड़ा। अब मैं उस इमेज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जो है एक लेंथ दे दूँगा, मुझे चाहिए। चलो ठीक है, काफ़ी है ये समझाने के लिए। अब हमें करना है, अब हम इसी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ड्राइंग तो हमें पहले इसको ड्राइंग कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ड्राइंग ऑप्शन हम चाहते हैं किसी तरह में लिखें, तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है और इसको डन कर दिया। इसके बाद इसको हम अनलॉक करते हैं। सेट कैमरा का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया, लाजमी करना है, इसको मत भूलिएगा वरना सारी नजर जाएगा। फिर आप परेशान हो जाएंगे, सारी वीडियो इधर उधर भाग रही होगी, समझ नहीं आएगा क्या होगा। तो फिर इसको सेट करना भी एक परेशानी का काम हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना था, अब हमने इसको मूव करना है। अनलॉक किया पहले और हमने एक इसकी कॉपी करी, इसी की कॉपी कर ली। कॉपी का ऑप्शन जो ऊपर था वहीं से मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसको हम बिल्कुल इसके साइज के एक्यूरेट बना देंगे, जितना इसका साइज है इसका का सेम एक्यूरेट वही साइज चाहिए, ताकि अलग अलग ना लगना, पता ना लगे। तो ये देखेंगे आप इसके बराबर में, और अभी भी थोड़ा सा आगे कोशिश करें जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। ऐसे बहुत से इमेजेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं कि कोई इनकम्प्लीट इमेज है उसको आप उसकी कम्प्लीट पिक्चर लगा दें। बहुत सारे ऑप्शन लगा दें, मूव करवाना है किसी तो कर सकते हैं। इसको हमने लॉक कर दिया। कैमरा सेट कर दिया। चेंजेस करने के बाद भी कैमरा सेट लाजमी करें। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हमने मार्क का, अच्छा ये मार्क का ऑप्शन है, बेसिकली इससे होती है ये वाली एनिमेशन, ठीक है। तो और वो एनिमेशन जो कॉपी किया हुआ ऑप्शन इमेज होगा आपका, उसके अंदर करेंगे आप, यानी कि ओरिजिनल वाले पर जिसका हमने कॉपी करके आगे लेकर आए उस पर हम ये सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाके सेलेक्ट करेंगे, मॉप का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये वही इमेज है जिसको हमने कॉपी किया था। अच्छा, यहाँ से हमने इसको मॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया
अब हमने इसको किससे फॉर्म करना है, जो पहले वाला ऑप्शन था उससे। अब ये रोटेशन हमें चाहिए 90 डिग्री पर, -90 डिग्री पर, यानी कि ये लेफ्ट साइड पर मूव होना चाहिए। तो आप राइट साइड पर मूव करवाना चाहें राइट साइड पर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं पूरा, यानी कि आप पूरे जो है किसी भी एंगल पे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस ये वाला भी ऑप्शन आता है, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ये भी इसको चेक करना है। अच्छा, कितनी देर में इमेज कंप्लीट हो वो हम यहाँ से इसको सेट कर देते हैं अपने यूज के हिसाब से। यहाँ से हमने इसको ओके किया, लॉक किया, सेट कैमरा किया। अब हम यहाँ से इसे को चला के देखते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये राइट हो, राइट होने के बाद यहाँ से ये देख रहे हैं आप, मूव हो गया पूरा। तो इतना इजी है, बट बहुत काम का है ये। आप जब इसको यूज़ करेंगे आगे इन फ्यूचर अपने काम में, तो आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे वो तो आपके डिपेंड करता है आइडियाज़ के ऊपर, ठीक है। तो हम एक और सीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 और फंक्शंस इसकी बताता हूँ। ये गाड़ी है, हम चाहते हैं ये मूव होकर आए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो होगा जनाब यार, इसको हम सेट कर यहाँ पर सेट कर दिया। इसमें आप कोई लिखा हुआ है वो भी आप चाहते हैं मूव करा है वो भी आ सकता है। पिक्चर है, डिफरेंट एनिमेशन होती है, डिफरेंटली आप एनिमेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को अपने आइडियाज़ लेकर, तो आप कर सकते हैं। चलिए, हम चाहते हैं कि ये जो है इसमें मुख्य ऑप्शन यूनिफॉर्म, बाउंस और शॉर्ट और स्मूथ आराम से आ जाए। बाउंस करके मतलब उछल कर कूद कराना, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसके बाद चलिए यहाँ पर चाहते हैं हम कितनी स्पीड में आए, कितनी स्पीड में आ रहे हैं टीवी के अंदर यहाँ, ठीक है। नो हैंड से नहीं चाहिए, हम चाहते हैं खुद चल कर आए यहाँ पर। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं नो हैंड, और ड्राइंग के ऑप्शन में गए। अब हम चेक करते हैं विदाउट हैंड, ये खुद ही मूव होकर आएगा। ये देख लीजिए मूव होकर आया है। अब इसको हम यहाँ कर देते हैं डन। ये है मूव इन मूव आउट का ऑप्शन। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन मैंने आपको बताया, बाउंस का था और डिफरेंट ऑप्शन थे। सेट कैमरा कर दिया, ठीक है जी। इसको हम चला के देखते हैं कि देख रहे हैं इस तरह से वीडियो बनी है आपकी। अच्छा, उसके बाद अगला ऑप्शन इसके अंदर आप सीखने वाले हैं एक और, मैं आपको इसका फंक्शन दिखा देता हूँ। चलते हैं, अब हम माउस का ऑप्शन दिखाना है ऑप्शन अगला। तो हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक और इमेज देखते हैं। इसमें बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं, इसको डाउन करके देखते हैं थोड़ा सा। गाड़ी का है ये आपका, यहाँ से हम एक और कार निकाल लेते हैं। सर्च होते हैं, इसमें आपको देखा टू कलर, लाइन कलर, ये डिफरेंट ऑप्शन आपको खुद से भी आ रहे हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, इजी है सर्चिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमने इस कार को सिलेक्ट कर लिया, चाहते हैं ये बाउंस होता है, ठीक है। तो इसको आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि ये इसमें फंक्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। कहाँ चला गया है, क्या जाएगा, कुछ आया छोड़ा कर देता हूँ इसका लिए भारतीय, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं। हम ड्रॉ नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि ये मूवमेंट होगा, ठीक है। तो पैडल के लिए हम चाह रहे हैं कि ये मूवमेंट होगा, तो हम इस मूवमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें देखिए मतलब डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, स्मूथ था, वो शॉर्ट बाउंस, यूनिफॉर्म का ऑप्शन था। तो हमने बाउंस पे क्लिक किया, कहाँ से बाउंस होकर आई ये गाड़ी, हम चाहते हैं यहाँ से आगे चले। इसको हम डन करते हैं, लेकिन तो बहुत ज़्यादा है, 8 सेकंड टाइम नहीं चाहिए हमें। इसको हमने डन किया, इसको लॉक किया यहाँ से, सही। सेट कैमरा करने के बाद हम इस एलिमेंट को चला के देखते हैं। देखिए ये इस तरह से बाउंस होकर आया है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि हमने एक मिस्टेक ये की कि हमने जो हैंड का ऑप्शन था वो हमने इसमें चेंज नहीं किया।
हम इसको चेंज कर देते हैं। हैंड हमें नहीं चाहिए, इसमें किसी के हाथ की ज़रूरत नहीं है। नो हैंड पे क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद इसको डन कर दिया और यहाँ से भी डन कर दिया है ये सेम के, ठीक है। और अब आप देखेंगे चलाकर इसको तो ये बिना किसी सहारे के खुद ही आ गया, ठीक है। कैमरा सेट करना लाजमी है। हम एक दफ़ा अपनी वीडियो को कंप्लीट चला के देख लेते हैं जो हमने काम किया है। फ्रॉम स्टार्ट पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं पूरी वीडियो इसकी ड्रॉ हो रही है। इसके बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें, जैसे कि मैंने आपको इसका ऑप्शन बताया था, सही है। बाकी ये देखें ये कब कैसे मूव होगा इस दौरान, कि कब मूव होकर आ रहा है पीछे की तरफ, कार आई, उसके बाद ये बाउंस का ऑप्शन है, सही है दोस्तों। अब इसके बाद हमने इसको करना है एक्सपोर्ट, यानी कि जो हमने काम कर दिया है इसको हमने अब सेव करना है। तो उसको सेव करने के लिए ये सारे तो ऑप्शन है, सारे मैंने आपको बताए हैं, साउंड का, म्यूज़िक का। चलिए म्यूज़िक का ऑप्शन अब आपको बता देता हूँ, जो कि जहाँ से आप डिफरेंट म्यूज़िक जो है वो उठा सकते हैं। इसकी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें से उठा सकते हैं। आपने अपने सिस्टम में कहीं सेव किया है तो वहाँ से भी आप जो है वो कोई भी अच्छा साउंड पिक कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ साउंड के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। चले अब हम सेविंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है जिसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसको वीडियो को जो भी आपने बनाई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड करने के बाद इसको अपने यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइवर एंड अपवर्क फ्रीलांस वेबसाइट है और बहुत सारे फ्रीलांस इस तरह के अवेलेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने काम को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन बेसिकली एक ट्रायल वर्जन है तो इसके अंदर आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते सेव के दौरान। और ये आप जो मैक्सिमम इसका साइज है वो 640 ही रहेगा, यहाँ पर इसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। इसको आप 20 फ्रेम रेट पे सेट रखें, ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी ट्रायल वर्जन है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल भी ट्रायल वर्जन है, देखिए यूज़ करें, इंजॉय करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। सेव कहाँ करना है, आप एक फोल्डर बना लें डेजिग्नेटेड, वहाँ पर इसको सेलेक्ट फोल्डर करके वहाँ पर ही आपका डाउनलोड हो जाएगा जो भी काम है। किसी एक जगह बना लें फोल्डर आपके सिस्टम में ताकि आपका सारा काम वहाँ से हो। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं यस, ठीक है दोस्तों। ये डाउनलोड हो रहा है, आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। रैंडरिंग योर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, ये हो रहा है। बाकी मैंने आपको बहुत एक यूजफुल वीडियो बताई के जरिए आपको सिखाया है वाइट एनिमेशन क्या है, कैसे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपडेट रहने के लिए लाजमी बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।